Morning. How are you? Good morning, everyone. सुबह class. Good morning. Thank you. Good morning, everyone. Morning. Good morning. Happy Children's Day. Thank you, Shubha Shakti, and the same to you all also. Good morning. No problem, Sudham. Previous revise kar lena. Make sure that all your videos are done. Today I'm going to finish judiciary. Okay. So my plan here is कि आज ये खत्म कर देते हैं. हाँ, आज 8 PM भी रखेंगे दीपाली. We'll have a 8 PM plus, hopefully. Okay. Okay. Let's finish off yesterday's topic. आज judiciary खत्म करते हैं. I don't think it will take more than 1 hour. लेकिन आज खत्म कर देते हैं. I have a slightly delayed case hearing आज मेरा दोपहर में, so I thought कि आज सुबह क्लास करके खत्म कर देते हैं. Okay, so let's just finish it off. Okay, ताकि judiciary खत्म, तो उसके बाद से हमारे constitutional bodies वगैरह वाला portions ज्यादा रह जाएंगे and the miscellaneous topics. तो हमारा polity जल्दी wind up हो जाएगा. मैं इसलिए जल्दी की बात कर रहा हूँ ताकि तुम्हें जल्दी revision का time मिल जाए. Okay, then we'll hop on to governance. All right. Okay, I'm sure बाकी subjects के भी topics ठीक ठाक चल रहे हैं. Okay, so you can quickly go to your revision part. Okay. All right, चलें start करें. Yes, आज से PL शुरू करते हैं. एक टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं. Let's finish it off. Now एक क्वेश्चन आता है. Okay, a question comes. Is the Supreme Court an autonomous body? Okay, this is a question that we say, is Supreme Court an autonomous, or others autonomous भी ठीक word नहीं है. It is actually इससे भी बड़ा word. It is a sovereign body. Is it a sovereign body? Okay, it's a very beautiful question. कि is Supreme Court a sovereign body? Now there are a couple of things जो हम लोगों ने यहाँ पे already पढ़ लिया है. We notice Article 124. We notice sovereign body means, what does sovereign means? That there is hardly any external influence and so on and so forth. Okay, there is no external influence and functioning. अब ये इसको मैं आंसर तो दूंगा. अब ध्यान से देखो, ये बड़ा balanced answer है. Okay, see Article 124 says that the judge of the Supreme Court shall be appointed by the President, but in consultation with the Chief Justice of India. और फिर अब हमने नोटिस कर लिया है that the Chief Justice of India is the one जो एक्चुअली ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइमल अफेयर. याद है मैंने सेकंड जजेस केस में ये वर्ड यूज किया था, इट इज अ प्राइमल अफेयर. तो पॉइंट नंबर 1 ये हुआ. हाँ सर, है तो सही. ओके, बहुत ज्यादा सॉवरेन तो है, लेकिन पूरा सॉवरेन तो नहीं है ना सर, बिकॉज प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज हैपनिंग. तो आई कैन से यस, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रीडम. ओके, बट देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑल्सो. सेकेंड नंबर पॉइंट, हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ पावर्स है वो रिट्स है. ओके, बट ये रिट्स सुप्रीम कोर्ट को मिली कहां से? वेयर हैज द सुप्रीम कोर्ट गॉट दिस रिट्स फ्रॉम? दे हैव गॉट दिस रिट्स फ्रॉम आर्टिकल 138 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 138 हैज बीन गिवन बाय द पार्लियामेंट. तो अगेन अब मैंने तुम्हें कल भी बताया था, पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द रिट्स, द पार्लियामेंट कैन नॉट डिक्रीज द रिट्स. यस और नो? अब ये दिस बिकम्स अनदर डेंजरस पॉइंट. ओके, कि सर यस बहुत हाई पावर्स है, बट फिर भी थोड़ी बहुत लिमिटेशन तो है. Are you understanding this part? Everyone has understood. Then comes the third rule. The third article is Article 145 of the Constitution. Article 145 of the Constitution says that the Supreme Court can make its own rules. Can make its own rules, its own rules, its own calendar. मतलब इसमें क्या आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट अपनी छुट्टियां खुद डिक्लेयर करेगा. सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स ऑफ प्रैक्टिस खुद डिक्लेयर करेगा. ओके, इनफैक्ट इफ यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार होता है. इवन द सिक्योरिटी स्टाफ उनका अपना होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द पॉइंट हियर इज, आई नोटिस दैट सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सट्रीमली हाई पावर्स, बट इन सम केसेस देयर आर आल्सो लिमिटेशंस. ओके, like this one, and so on and so forth. Similarly, there is a security of the term and the security of the office. Security of the term, the security of the office of the Supreme Court, but this security of the term on office भी पूरा नहीं है ना, my friends. Because on the basis of proven misbehavior and incapacity, on the basis of proven misbehavior or incapacity, Parliament can remove him also. I hope you are understanding. Everyone has understood. तुम्हारा आंसर आएगा sovereign. Yes, it has very high amount of freedom. But word क्या finally तुम use करोगे आंसर में? In a democracy, nothing is completely sovereign. Okay, we are 3 organs of the state. Okay, and we will always function in coordination. ये तुम्हारा आंसर मैंने पूरा बना के दे दिया तुम्हें. So is it sovereign?
No, it has huge freedom but not completely sovereign. The reasons are here. सबको समझ में आ गया? Everyone has understood? Yes, yes. Dipali, now you're smart enough. I hope you're understanding this one. Okay? Morning, Shirpal. Morning. Everyone is clear, my friends? All okay? All right. Chalo. Now this is one. Now let's go down to the last topic. Now comes to public interest litigation. Now listen. When I'm talking of public interest litigation, ये है क्या? See, public interest litigation started way back in New York. Okay, 19th century में न्यूयॉर्क में 1870s में actually, right, 1870s में न्यूयॉर्क में start हो गया what is called as public interest litigation. Okay, public interest litigation धीरे धीरे न्यूयॉर्क में spread हुआ and legal aid clinics बना. क्या बना? Legal aid clinics. ये क्या थे? Legal aid clinics US में, what was US? US में legal aid clinics का काम था. I hope तुम्हें याद है, USA had a very major problem with blacks and whites. I hope you remember this so-called skin discrimination. So what used to happen was that the blacks को कोई lawyer represent ही नहीं करता था. Very good, Siraj. The Rosa Parks incident. Very nice, very good. Okay, the Rosa Parks incident is a very important thing. The Montgomery bus, so-called rebellion, that whatever happened because of Rosa Parks. Either ways होता क्या था, ये blacks को lawyers represent नहीं करते थे, and without lawyers, and at least quality lawyers तो बिल्कुल ही नहीं करते थे. There were no quality lawyers. So these legal aid clinics were giving them free legal aid. They were giving them free legal aid. This was called as public interest litigation. It was called as public interest litigation. In India, we had a different concept of public interest litigation. Okay, we did not think exactly in this part. We thought in the following language. Words याद करना, words पकड़ लो. Words है concerned citizen in larger public interest. Word बोलो सब लोग. Concerned citizen in larger public interest. So litigation by a concerned citizen in larger public interest is called as PIL or public interest litigation. मैं फिर बोल रहा हूँ, concerned citizen in larger public interest is what is called as a PIL or a public interest litigation. Are you understanding, my friends? सबको समझ में आ गया? Okay, तो यहाँ पर 1970s में इंडिया में public interest litigation catch up करना start किया, right? Actually जो first PIL था वो था द मुंबई कामगार सभा केस. Okay, it was the first PIL 1976 में था, which was called as the मुंबई कामगार सभा केस. लेकिन ये इतना फेमस नहीं हुआ, पर ये हिस्टोरिकली तुम्हें याद होना चाहिए अगर तुम्हें याद रहा तो. Okay, historically speaking, this was the first PIL that India ever had in the, ये लाइन याद रखना. Okay, the concerned citizen in larger public interest. फिर हम इसको आगे इसको ट्रीट करेंगे. Okay, अब हुआ क्या? ना लिसन. अब हुआ क्या? एक स्टोरी स्टार्ट हो गई यहाँ पर. When I'm looking at a story here, okay, there was this lady. मैंने तुम्हें शायद आर्टिकल 21 में बताया होगा. I'm not very sure. अगर नहीं पता है तो भी मुझे बता देना. Stop me if I have already told you this. This is a case called as the हुसैन आरा खातून case. सबको याद है? I must have told you this. अगर नहीं पता है तो मुझे प्लीज बोल दो. Have I told you about हुसैन आरा खातून case? बच्चे तुम लोग हो, चले जा चुके हो. Be active in the class. हो तुम लोग, all of you are gone. Okay, I have not taught you about Hussain Ara Khatun. Okay, so the Hussain Ara Khatun case, okay, the Hussain Ara Khatun case was a very important case, right? It was noticed कि बिहार के prisons में, okay, बिहार के prison में there were many people जिनको illegal custody में रखा गया था. किसमें रखा गया था? Illegal custody में रखा गया था. Now उनमें से एक famous lady थी, sorry, उसमें जो famous हुई उनका नाम था हुसैन आरा खातून. हुसैन आरा खातून से जिनका PIL मूव किया, उनका PIL मूव किया एक लेडी के एफर्ट की वजह से, कॉल्ड मैडम कपिला हिंगोरानी. वेरी गुड, वेरी नाइस. आई थिंक मैंने फिर बताया तो है इसका मतलब. ओके, कपिला हिंगोरानी ने हुसैन आरा खातून एंड द सेवरल अदर पीपल जिनको इलीगल कस्टडी में लिया गया था एंड वर पुट इन बिहार प्रिजन्स, उनके लिए एक PIL मूव किया और वो PIL बन गया द बिग केस कॉल्ड एज हुसैन आरा खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू होम सेक्रेटरी. ओके, और सुप्रीम कोर्ट को बड़ा बुरा लगा. उन्होंने बोला यार ये सही है, तुम लोग कैसे कैसे गड़बड़ कर देते हो. ओके,
पूरा का पूरा आर्टिकल 21 तुम लोगों ने वायोलेट करके रख दिया. ओके, नो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज बीइंग फॉलोड एंड देयरफॉर ऑर्डर वाज सेंट. दिस वाज एक्चुअली, अगर अब तुम समझ सकते हो आर्टिकल 21 अगर वायोलेट हो रहा है तो कौन सा टाइप का ऑर्डर होगा. ये हेबियस कॉर्पस रेट थी. ओके, सबको याद आ रहा है? यस, हेबियस कॉर्पस थी. एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, इन फैक्ट फाइंड द स्टेट ऑफ बिहार फॉर कंटेम्प्ट. कपिला हिंगोरानी was now, अभी अभी उनकी डेथ हुई है थोड़े टाइम पहले. She is now represented, or she is famous as mother of PIL revolution in India. यहाँ से PIL revolution start हो गया my friends, right? एक revolution सा start हो गया. Almost all the matters जिसको अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, जो तुम्हें लगता है कि यार ये तो अपने आप हो गया होगा, अरे अपने आप कुछ नहीं हुआ इंडिया में. ओके, एवरीथिंग वाज डन. ओके, किसी ना किसी का एफर्ट है. ये अनसंग हीरोज है. कपिला हिंगोरानी का ये जो केस, हुसैन आरा खातून केस था, उसमें एफर्ट्स थे इससे बड़े बड़े जजेस के, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस चिन्नप्पा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और स्टार्ट हो गया इंडिया में व्हाट इज कॉल्ड एज अ PIL रेवोल्यूशन. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, आई थिंक मोर देन 35,000 प्रिजन इनमेट्स को रिलीज किया गया था पूरे इंडिया में, नॉट ओनली इन बिहार बट ओनली इनमेट्स, जस्ट साइटिंग. मैंने तुम्हें उस टाइम बताया था डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट होता है. ओके, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट यूज करके, ओके, दैट हुसैन आरा खातून में यू हैव टू रिलीज पीपल. Thousands and thousands of prison inmates were released all over India. I hope you're understanding. ये effect होता है एक केस का. And हुसैन आरा खातून case actually the first popular PIL okay बन गया. It was not that it is the only PIL or the first PIL. No, it is the first popular PIL. और उसके बाद story start हो गई for several other PILs in India. Now, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ. Okay, some of the better ones मैं तुम्हें बता रहा हूँ. And then you can understand this. Okay, so you can understand them in several categories, right? सारे के सारे ना तुम्हें याद करने की जरूरत है, ये तुम्हें एक व्हाट यू कॉल्ड इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स की तरह याद करना, राइट? नाउ द फर्स्ट केसेस जो तुम्हें याद होने चाहिए आर एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस. ओके, नाउ एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस में मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज द नेम ऑफ अ जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर MC मेहता. MC मेहता इज एन एडवोकेट जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी है प्रैक्टिकली फॉर द PIL फॉर रिलेटेड टू एनवायरमेंट. यू शुड से साइलेंट थैंक्स टू हिम फॉर द ग्रेट वर्क दैट ही हैज डन. बहुत सारे अलग अलग सालों में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस किए इन्होंने, राइट? एंड इन्होंने PIL फाइल किए फॉर एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज. नाउ आई एम अबाउट टू टेल यू सम ऑफ देम. The first amongst them is called as the Taj trapezium case. It's a very famous case called as the Taj trapezium case. ये सारे जो Taj trapezium cases है, ये सब MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होंगे. ओके, सो Taj trapezium cases में इन्होंने मथुरा ऑयल रिफाइनरी में ऑल्टरनेट फ्यूल की डिमांड की कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी में ऑल्टरनेट फ्यूल करो ताकि उसके फ्यूम्स ना उठे, और उसके फ्यूम्स वर डैमेजिंग ताज. ओके, सो ताज में टैनिंग हो रही थी. ओके, तो एक एक्सक्लूसिव जोन बनाया गया जिसको ताज ट्रेपीजियम एरिया बोलते हैं, जहां पर यू विल प्रिवेंट सच काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन सो दैट ताज डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. दिस केस इज कॉल्ड एज द ताज ट्रेपीजियम केस. Second case is called as the oleum leakage case. It is called as the oleum leakage case. ये भी बड़ा फेमस है. Oleum leakage case श्रीराम फर्टिलाइजर्स के अगेंस्ट किया था. श्रीराम फर्टिलाइजर्स दिल्ली में ओलियम को यूज करके ऑब्वियसली केमिकल फैक्ट्रीज यूज करते थे. नाउ वी हैड लर्नड अ वेरी हार्श लेसन फ्रॉम भोपाल गैस ट्रेजेडी. भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ क्या था, आई होप यू अंडरस्टैंड. मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो गया था. नाउ मिथाइल आइसोसाइनेट इज अ वेरी डेंजरस केमिकल. ओके, लेकिन द प्रॉब्लम था मिथाइल आइसोसाइनेट का कि ठीक है मान गए यार केमिकल रिलीज हो गया, केमिकल डैमेज कर गया, सब कुछ हो सकता था, लेकिन इतना बड़ा डैमेज ना होता अगर ये यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री जहां पर ये लीकेज हुआ था वो राइट इन द मिडल ऑफ पॉपुलेशन ना होता. वो इतना क्लोज टू द पॉपुलेशन था कि thousands and thousands of people either were dead या blind हो गए and so on and so forth because of this methyl isocyanate. ये हम बाद में करेंगे कि इसी ओलियम लीकेज केस की वजह से ये बात बोला गया. श्रीराम फर्टिलाइजर जिसका दिल्ली के पॉपुलेशन के बीच में ही फैक्ट्री था, तो उन्होंने ये बोला कि द कोर्ट ऑर्डर्ड कि एवरी हैजार्डस केमिकल वाला जहां भी बन रहा है हैजार्डस केमिकल का फैक्ट्री वो पॉपुलेशन से दूर होना चाहिए. दिस वाज बिकॉज ऑफ थैंक्स टू व्हिच केस, द ओलियम लीकेज केस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझ में आता जा रहा है? क्विकली नोट्स बनाते चले जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताते चले जा रहा हूं. ओके, द नेक्स्ट वन वाज अ वेरी फेमस केस व्हिच इज कॉल्ड एज द DTC CNG केस. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीजल यूज करता था. डीजल इज अ वेरी वेरी पोल्यूटिंग फ्यूल. ओके, एंड दैट इज व्हाई दिल्ली की एयर पोल्यूट हो रही थी. वैसे तो ऐसे भी अभी भी हो रही है, लेकिन तब बताओ तब कितनी हो रही होगी. ओके, तो ये एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इट वाज प्रोवाइडेड
that Delhi Transport Corporation instead of diesel use करेगा CNG. CNG or the compressed natural gas pollution कम करने में help करेगा. This is popularly called as the DTC CNG case. ये भी MC Mehta versus Union of India. I hope you are noticing these efforts of this man. फिर एक और केस था which was called as the Kanpur Tanneries case. इसको क्या बोलते हैं? The Kanpur Tanneries case. The Kanpur Tanneries case गंगा pollution से related था. गंगा river had been severely polluted और उसमें no issue नहीं लो. कानपुर टैनरीज केस में गंगा पोल्यूशन इसलिए हो रही थी बिकॉज कानपुर के पास लेदर टैनरीज, लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में अनट्रीटेड अफ्लुएंस, जो वर्ड्स मैं यूज करते जा रहा हूं ना भाई फ्रेंड्स, ये तुम्हारे पास बोनस वर्ड्स है, इनको यूज कर देना. अनट्रीटेड एफ्लुएंस डायरेक्टली गंगा में रिलीज करते थे. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला या तो अनट्रीटेड एफ्लुएंट को ट्रीट करो, नहीं तो कानपुर टैनरीज बंद करो. ओके, so I hope you are understanding it was a huge effect on the Ganga pollution levels. Are you all understanding? Okay, all these and many such cases, ये ज्यादातर famous cases है, were all because of MC Mehta versus Union of India. एक और बड़ा interesting component मिस्टर MC Mehta की contribution की वजह से हुआ. MC Mehta versus Union of India का 1993 का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर MC Mehta ने कहा क्या ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया सिर्फ हम ही एनवायरमेंट साफ करेंगे. ओके, जो नॉर्मल पब्लिक है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई क्या करना बताओ, तो बोला कि सर अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना, लोगों को क्या से पता कि क्या ठीक है कि क्या गलत है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और ये तुम नोटिस करते होंगे कि हर सिनेमा हॉल में मूवी स्टार्ट होने से पहले, ओके, एवरी सिनेमा हॉल बिफोर द मूवी इज देयर यू विल सी एटलीस्ट 2 स्लाइड्स व्हिच डील विद एनवायरमेंट अवेयरनेस. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? So 2 slides which are related to environment awareness is shown by the movie hall. Okay, खुशी एंथम का एनवायरमेंट से क्या लेना देना बेटा? Okay, are you understanding? So now Supreme Court has given the order. Why has this happened? Again because of MC Mehta versus Union of India. That is because it will release or increase environmental awareness. Are you understanding? Again thanks to Mr. MC Mehta versus Union of India. सबको clear है या नहीं? All okay? आराम से लिख लो, make notes. Okay, किसी को कुछ रहता है आराम से properly make notes. Okay, ये काम आएगा. और बड़ा अच्छे क्वेश्चन आते हैं. PIL is always in the middle of storm. कुछ ना कुछ इसका क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं. लिख लिया सबने? नोट्स बन गए? ओके, नाउ ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली वन. ओके, दिस इज नॉट द ओनली वन जो हम लोग को डील करना है. और भी ये तो हो गया एनवायरमेंट, ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट से रिलेटेड. ओके, बट देयर आर अदर केसेस आल्सो दैट यू शुड नो. ओके, एंड ये थोड़े फेमस वाले, पास वाले तो मैं अभी के लिए तुम्हें बता देता हूं. ओके, सो सबसे पहले इसमें यू शुड रिमेंबर जो बड़ा फेमस हो गया था, दैट इज द अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ये कैसे हो रहा है? Arjun Gopal versus Union of India case. Now, okay, Arjun Gopal versus Union of India case was a very famous case जिसकी वजह से दिल्ली में फायर क्रैकर बैन किया गया था. तो you should know this case. Arjun Gopal versus Union of India की वजह से फायर क्रैकर बैन हुआ था. फिर एक और केस हुआ था which is called as the Swapnil Tripathi versus Union of India case, and it was not Union of India actually. It was Swapnil Tripathi versus Registrar Supreme Court of India case versus Registrar Supreme Court of India case. This case में तुम्हें मैंने शायद कल भी बताया था, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स को डिमांड किया गया था. एंड सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी लाइन थी, एंड ये शायद तुम्हें कभी क्वेश्चन भी आ जाएगा, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट. ये वर्ड यूज किया गया था. मतलब कि अगर हम ओपन आई से ओपन कोर्ट में काम करेंगे, तो उल्टा करप्शन, डिले, ये जो कुछ भी एलिगेशंस होती है ये कम होगी. This is because of which case? This case was because of Swapnil Tripathi versus Supreme Court of India. Then there is a very famous case that you should also know, which is called as Dr. Subhash Kashinath Mahajan. Dr. Subhash Kashinath Mahajan versus Union of India case. ये भी बड़ा famous हुआ था बीच में. Okay, if you notice, versus Union of India case. Dr. Subhash Kashinath Mahajan ने बोला था there is misuse of SC/ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. अगर तुम्हें याद होगा तो बीच में ये बड़ा मेजर हाईलाइट में हुआ था कि किसी को नॉन बेलेबल बना दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके,
अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये था डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। एवरीवन इज क्लियर फ्रेंड्स? समझ में आता जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा? एवरीवन, फिर एक और केस था, ओके, एंड ये लिख लिया, कैन आई टेक दिस ऑफ? अच्छा रुको, ओके। The next case, one very important case I would like you to know is the Manohar Lal Sharma versus the great Narendra Modi. Okay, ML Sharma versus Narendra Modi case is the very famous PIL, जिसको Rafael case बोलते हैं. Okay, so this is called as the Rafael case. Are you understanding, my friends? Yes. Now, एक और case था which is called as the Sheila versus State of Maharashtra case. Say the case. What is this? Sheila versus State of Maharashtra case. Now, Sheila versus State of Maharashtra 1983 का केस है, बट इसने जिंदगी बदल दी बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए. क्यों? शीला बर्से वाज अ जर्नलिस्ट जिन्होंने नोटिस किया था दैट जब कस्टडी में पुलिस लेती है, ओके, व्हेन पुलिस टेक्स पीपल इन कस्टडी, स्पेशली इफ पुलिस टेक्स वुमेन इन कस्टडी, तो द ट्रीटमेंट इज वेरी बैड, हैरेसमेंट होती है. ओके, सो शी नोटिस एंड शी फेल्ट वेरी बैड. शी सेड, माय लॉर्ड, ये तो बड़ा बुरा बात है, ऐसे थोड़ा ना किसी को कस्टडी में लेना होता है और फिर उसको साथ हैरेसमेंट करो. तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन गाइडलाइंस दिया. सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए थे, दीस गाइडलाइंस वर कि नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट. आफ्टर सनसेट उनको अरेस्ट नहीं करना है. नंबर 2, देयर शुड बी नो सर्च और इफ पॉसिबल इवन द अरेस्ट ऑफ अ फीमेल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अनदर फीमेल ऑफिसर. तो कोई ना कोई अनदर प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल ऑफिसर होगी तो ही शी विल बी अरेस्टेड. नंबर 3 वाज कि पर्दा नशीन लेडी, पर्दा नशीन, आई होप तुम्हें मालूम होता है क्या होता है, जो फेस कवर करती हैं, पर्दा नशीन लेडीज अगर अकेली है, अलोन है, इफ शी इज अलोन एट हाउस, तो उस प्रेमिसेस को सर्च नहीं किया जाएगा. ओके, फॉर द प्रोसेस ऑफ डिग्निटी. ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द डिग्निटी ऑफ अ वुमन. बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तुम लोग वो चले गए हो? ओके, हाँ करते रहो, नोट्स बनाते रहो. थैंक यू. नाउ इस एक और बड़ा फेमस, आई होप सबके बन गए नोट्स. ओके, नाउ इससे इंपॉर्टेंट, इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फेमस केस, द वेरी इनफेमस केस और व्हाटएवर यू वांट टू से, इज द बिग केस कॉल्ड एज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ओके, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की वजह से केस बना, द ग्रेट एक्शन डन, जिसकी वजह से पार्लियामेंट ने अल्टीमेटली पास किया व्हिच इज कॉल्ड एज द पॉश एक्ट. द पॉश एक्ट क्या है? द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट. द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल, ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस साल आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस वेरी फेमस हैशटैग मीटू कैंपेन. तो ये जो हैशटैग मीटू कैंपेन हुआ था, उसके पीछे जो लीगल सैंक्शन था वो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट था. अब ये आया कैसे? ये was because of a lady called as Bhavari Devi. Bhavari Devi was working in Rajasthan और उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट और चाइल्ड मैरिज के को अपोज किया था. बिकॉज ऑफ चाइल्ड मैरिज ऑपोजिशन इन राजस्थान, जहां पर की चाइल्ड मैरिज वाज प्रीटी मच वेरी रैम्पेंट एट दैट टाइम, तो द चाइल्ड मैरिज की वजह से भवरी देवी केम अंडर अ वेरी डेंजरस व्हाट इज कॉल्ड एज सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट. वर्ड क्या यूज करोगे? सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट. उन्होंने फेस किया, उनके साथ सेक्सुअल अटैक हुआ उनके ऊपर, ओके, रेप किया गया उनको, और सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट हुआ. जब सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट हुआ तो उनके पास, उनको कोई काम नहीं रखा गया, उनको बाहर निकाल दिया गया. लॉयर कॉल्ड एज नैना कपूर ने उनका केस लिया एंड contested this case in the Supreme Court. वो केस कहलाया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ओके, सो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या प्रॉब्लम है? तो हमने बोला माय लॉर्ड, हमें सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट हुआ. ओके, तो उन्होंने बोला कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तो हमने बोला हम पुलिस के पास गए माय लॉर्ड. ओके, पुलिस को समझ में नहीं आया सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट क्या होता है. ओके, पुलिस ने लॉ खोल के देखा, लॉ की बुक, तो लॉ में सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट नाम की वो चीज ही नहीं लिखी थी. ओके, तो पुलिस इसको कुछ कर ही नहीं पा रही थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कौन सा लॉ होना चाहिए? हमने कहा हमें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो रहा है,
सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कोई लॉ है ही नहीं। तो हमने बोला हमारे साथ तो इनजस्टिस हो गया माय लॉर्ड। ओके, तो उसने बोला ये बात तो ठीक है। एक एक कोर्ट्स में लॉ में एक नियम होता है, उसको बोलते हैं, अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं याद है तो भी तुम्हें समझदारी के लिए मैं तुम लोग को एम्पावर्ड सिटीजन बना रहा हूँ। इसको बोलते हैं उबी जस इबी रेमिडियम। ये एक रूल है, लैटिन मैक्सिम है। इसको बोलते हैं उबी जस इबी रेमिडियम। का मतलब होता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडी होनी जरूरी है। Are you understanding? लॉ में if there is a problem, there should be a remedy. Okay? तो भाई प्रॉब्लम तो आ गई, तुमने लॉ नहीं बना, हमारी गलती है क्या? सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला करेक्ट है। ओके, एंड दैट इज व्हाई विशाखा गाइडलाइंस दी गई। विशाखा गाइडलाइंस वर गिवन टू ऑल द स्टेट्स टू बी फॉलोड टू एंश्योर दैट वी विल प्रोटेक्ट आवर वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। और इन गाइडलाइंस को ही यूज करके बाद में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, द पॉश एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट। This also is because of a PIL. I hope you have understood, my friends. ये लिखकर आ गया ना तुम लोग, तो हो गया तुम्हारा टॉपर सीधा। ओके, सीधा यही सब कुछ लिखकर आ जाना, जो अभी अभी स्लाइड पे ना सिर्फ इतना लिख देना। ओके, एग्जामिनर से स्माइलिंगली तुमको पास कर देगा। ओके, now listen. Now the problem here is कि ना हिंदुस्तान में जस्टिस थोड़ा महंगा है। ओके, सुप्रीम कोर्ट बोले जा रहा हूं मैं। तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में अगर एक छोटा सा भी केस करना है ना, तो तुम्हें 5 से 10 लाख रुपए तो होना ही चाहिए कम से कम। ओके, कम से कम वो भी। ओके, तो 10 लाख के नीचे तो तुम सोच ही नहीं सकते कि तुम सुप्रीम कोर्ट में केस करके निकल जाओगे। ओके, तो तुम तो चाहे वो लॉयर फीस हो, चाहे कुछ हो, सोच जाओ, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ओके, तो अगर ये एक्सपेंसिव है तो एक आदमी, ओके, अगर एक आदमी के पास भाई खुद की इतनी सारी मुश्किलें हैं कि उसको पीआईएल का सहारा देना पड़ा, विशाखा गाइडलाइंस फॉलो, कोई भी केस समझ लो, तो भाई वो सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचेगा? वो पीआईएल कैसे फाइल करेगा? तो हमने बोला माय लॉर्ड कुछ करते हैं इस बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट बोला बराबर है। नंबर 1, हम कोई कोर्ट फीस नहीं चार्ज करेंगे। ओके, सो देयर इज नो कोर्ट फीस एप्लीकेबल फॉर दिस। नंबर 2, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन को अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैंने बोला माय लॉर्ड कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना। तो बोले नहीं कोई नहीं करना पड़ा। तो मैंने बोला माय लॉर्ड कैसे, एक एग्जांपल दो। बोला कि सिद्धार्थ अगर तुम एक लेटर भी लिखकर भेज दो ना, ओके, अगर तुम एक लेटर भी लिखकर भेज दो ना और हमें वो बात समझ में आ गई, तो हम उसको रिट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज हम पीआईएल में खुद कन्वर्ट कर देंगे। मैं कहा माय लॉर्ड दिस इज वेरी गुड। बोले सिद्धार्थ देखो नहीं मालूम है, इसको बोलते हैं एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। तो हम लोग पहले ये डॉक्यूमेंटेशन से डरते थे, फाइलिंग में, लीगल टेक्निकलिटीज में। ओके, बट कोर्ट्स बोलते तुम हमें एक लेटर भी लिखो तो भी हमारा काम है। इनफैक्ट जब हम लोग स्टार्टिंग में, अभी तो थोड़ा जमाना बदल गया। ओके, एपिस्टोलरी का इंग्लिश मतलब होता था आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, अगर तुम्हें नहीं आइडिया तो। ओके, नाउ लिसन मी। सो नाउ मैंने एक दिन, हम लोग पहले भी ऐसे करते थे, जब मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस, तो हम लोग ऐसे करते थे। जैसे हमारे क्लाइंट्स जो होते थे, क्लाइंट्स मतलब जो हमारे एकदम केस करते थे, वो सीजन्ड क्रिमिनल्स होते थे। तो हम बोलते थे कि जब पुलिस उठा लेती थी ना उनको, तो हम उनकी वाइफ्स को वो बोल देते थे कि तुम ऐसे करो, पुलिस ने कर दिया ना, अब तुम एक टेलीग्राम कर दो। ओके, तब टेलीग्राम हुआ करता था। उस टेलीग्राम को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कर दिया जाता था। उस टेलीग्राम को भी कन्वर्ट कर दिया जा सकता है एज अ पीआईएल, वो हेबियस कॉर्पस रिट कहलाती थी। I hope you're understanding. Okay. So in other words, that was also an example of epistolary jurisdiction. Okay. So now मैं बोला ओके, तो मैंने कहा माय लॉर्ड वकील, तो बोला जरूरी नहीं सदा। ओके, अगर है तो ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेशन है तो ले आओ, नहीं है तो फ्री लीगल एड मिल जाएगा तुमको। ओके, वो यहाँ से मिल जाएगा, तो पीआईएल्स कर देंगे। मैंने कहा ओके माय लॉर्ड। और कुछ? बोले सिद्धार्थ लोकस स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको याद है लोकस स्टैंडर्ड क्या होता है? एवरीवन नोस, रिमेंबर द लोकस स्टैंडर्ड? यस और नो? योर पोजीशन इन द कोर्ट। तो बोले हाँ सर लोकस स्टैंडर्ड। इन अदर वर्ड्स, मैंने कहा वो तो माय लॉर्ड होनी ही नहीं चाहिए ना। बोले क्यों? मैंने बोला माय लॉर्ड ये तो कंसर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है ना, तो जरूरी थोड़ा ना कि मेरे पास मेरे को तकलीफ है, मैं तो किसी और के लिए भी लड़ सकता हूँ। तो बोले एग्जैक्टली, अब तो समझदार हो गए सिद्धार्थ, इट इज कंसर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। कविता, आई एम जस्ट टेलिंग यू टेलीग्राम वाला पार्ट। अर्लियर इट यूज्ड टू बी डन इफ इन केस the police picks you up arbitrarily, we used to send a telegram to the chief justice, and the chief justice used to convert that into a habeas corpus in some cases. Okay, don't take that too serious, that was just practical. Okay, either way what I'm trying to indicate here is that epistolary jurisdiction means that you can write a letter also. मैंने कहा माय लॉर्ड अगर आपको कोई एप्लीकेंट मिला ही ना, ओके, कोई एप्लीकेंट सामने आ ही नहीं रहा, ओके, और तो आपको पता चल गया कि XYZ जगह में सम प्रॉब्लम है हैपनिंग, तो क्या आप एप्लीकेंट का वेट करोगे? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोला हम सुप्रीम कोर्ट है, हम किसी का वेट नहीं करते। Okay, we can do suo moto cases also. In other words, PIL can become suo moto also.
सुओ मोटो मीन्स ऑन इट्स ओन मोशन। क्या बोलते हैं? ऑन इट्स ओन मोशन। तो केस तो द कोर्ट कैन डू इट ऑन देयर ओन ऑल्सो। ओके, दे कैन डू इट ऑन देयर ओन ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड सुओ मोटो। तो केस बन जाएगा कोर्ट, ऐसा हो जाएगा, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस जो भी है, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट या जो भी, बट एक एप्लीकेंट कौन बन जाएगा? कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन। ऐसे केस को क्या बोलते हैं? सुओ मोटो। बात समझ में आया फ्रेंड्स? सबको समझ में आता जा रहा है? these are the unique features of these are the unique features of the PILs। ओके, तो इसी वजह से, ओके, इसी वजह से देयर इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो तुमने जो केसेस देखे, अगर तुम्हें याद है, कितना इंटरेस्टिंग इंदिरा सानी केस, जो मंडल केस था, इफ यू नो दिस, वाज अ PIL, इफ यू नो दिस। ओके, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो फर्स्ट जजेस केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दिस वाज आल्सो PIL। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तुम अगर नोटिस करते जाओ तो हमने अभी इस कोर्स को करते करते जाने कितने सारे PILs कर डाले, हमें पता ही नहीं चला। तो इस देश का लीगल हिस्ट्री बनाने में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने बड़ा ह्यूज रोल प्ले किया, डिस्पाइट द फैक्ट ये सिर्फ 1970s में स्टार्ट हुआ। यस और नो? Most of your environment related cases and so on and so forth and everything. Now Supreme Court ये powers कहां से यूज कर लेती है? Supreme Court utilizes Article 141 as the law of the land as well as Article 142, जिसमें मैंने कल बताया था for complete justice. Supreme Court starts utilizing anything on this part. Okay, तो Supreme Court के पास legal sanction है ये करने का। Everyone has understood, friends? अब होने लगा कुछ और। Okay, अब होने लगा कुछ और। अब होने क्या लगा, लोगों को बड़ा मजा आने लगा। तुम्हें मालूम है इंडियंस खासकर ना मिसयूज बड़ा करते हैं। ओके, तो इंडियंस ने एक नया आइडिया है, उसको एक नया आइडिया है, बोला कि यार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बड़ा पावरफुल है। ओके, ये तो बड़ा पावरफुल सिस्टम है, चलो इसको मिसयूज करते हैं। कैसे? एक बिल्डर है, okay? एक बिल्डर है, उसने एक बिल्डिंग बना दिया, उसके 50 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। ओके, इस बिल्डिंग में नाउ एक ये जनाब आते हैं और एक PIL डाल देते हैं और बोलते सर ये तो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है, ये तो एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर देगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन तुम्हें मालूम है PIL की वजह से सुप्रीम कोर्ट पहले उस पर स्टे लगवा देगा। ओके, कि भैया यहाँ पे रुक जाओ यार, ओके, हम पहले चेक करेंगे। अब तुम्हें मालूम है एक बिल्डर के लिए हर दिन को उसको इंटरेस्ट देना है, वो ना, उसका तो बेचारे का काम फंस गया। ओके, वो बेचारा रोते हुए इसके पास जाएगा, बोलेगा भाई पता यार क्या लेना है तूने, बख्श हमको। यूर अंडरस्टैंडिंग? इन अदर वर्ड्स इट कैन बी यूज्ड एज अ मींस ऑफ ब्लैकमेल। ओके, उसी तरह से तुम नोटिस करोगे पॉलिटिकल वेंजेंस के लिए, ओके, पॉलिटिकल वेंजेंस के लिए, राइट, हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के लोगों के ऊपर PIL डालती रहती है। उसी तरह से देयर आर एंटी नेशनल एलिमेंट्स आल्सो। ओके, पाकिस्तान का कोई बंदा होगा, ओके, ही डज नॉट वांट कि इंडिया में डेवलपमेंट हो, ओके, वो ऐसा झूठा झूठा PIL डाल देगा। तो एक और वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें अभी एक केस बताया था, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र मोदी। अभी मिस्टर मनोहर लाल शर्मा एक वकील साहब है, ओके, वो ऐसा हर चीज पर PIL डालते रहते हैं। ओके, तो भाई इससे क्या फायदा हो जाता है? इससे भाई तुम फेमस हो जाते हो। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इससे तुम फेमस हो जाते हो। अब देखे लो, मैं ही तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो बदनाम भी होंगे तो नाम तो होगा ना। आई होप यू नो दिस। तो इससे चीप पब्लिसिटी भी मिल जाती है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा बुरा लगने लगा। बोले यार ये क्या है यार, इसके लिए थोड़ा बनाया था हमने, वी डिड नॉट मेक द PIL फॉर ऑल दिस थिंग। तो उन्होंने एक दिन गुस्से में आके उन्होंने वर्ड यूज किया, दैट PIL इंस्टेड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अब बिहेव हो रहा है लाइक अ प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, इन अदर वर्ड्स, या फिर एज अ पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पूरा का पूरा इन लोगों ने नाम रूप ही बदल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट बोला यार ये सही है, एक तो हम तुम्हें इतने सारे प्रोविजंस दे रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यू आर मिसयूजिंग इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया, ओके, दैट अब हम सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरीज में PIL एंटरटेन करेंगे एंड रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको स्क्रीन करेगी। ओके, ये रजिस्ट्री को बोला कि तुम स्क्रीन करो जितना हो सके कि ये कोई फॉल्स या फ्रिवलस केसेस तो नहीं है। ओके, और अगर फॉल्स एंड फ्रिवलस केसेस हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स यूज करेंगे। ओके, आज जो कैटेगरीज है वो ये कैटेगरीज है। कैटेगरी नंबर 1 is dealing with bonded labor cases. You please memorize as it is कर लेना। एक second category is neglected children cases. Third is minimum wages. Fourth is jail petitions. Fifth is police petitions. Okay, jail petition समझते हो ना, जेल में जो कुछ भी खराब होगा, and so on so forth. Sixth is petitions for protection of women. Seventh is petitions for protection of scheduled castes and scheduled tribes. Eighth is riot victims and ninth is environment. Are you understanding? सो यही कैटेगरीज में हम अब PILs को एंटरटेन करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये प्लीज लिख लो सब लोग।
bonded labor, neglected children, minimum wages, jail petitions, police petitions, petitions for protection of women, petitions for protection of scheduled caste, scheduled tribe right victims, and environment. Done? सबका हो गया? Yes, right victims. Okay. तो सर ये तो अलाउड हो गए. नॉट अलाउड क्या है? नॉट अलाउड है बेटा ऐसा कोई भी केसेस जो फॉर एग्जांपल मेरी जॉब में ट्रांसफर कर दो. ओके, दिस कैन नॉट बी डन दिस. ओके, सो यू कैन नॉट बी माय जॉब ट्रांसफर, माय सैलरी इंक्रीज. ओके, या फिर एनी प्राइवेट केसेस. ओके, property cases, these cases etc will never be entertained as PILs. Okay, why? Because मुझे इस authority की sanctity maintain करनी है. It should continue to be for larger public interest. बात समझ में आ गया? Everyone has understood this? Yes. Now listen to me very carefully. तो ये हमारे पॉइंट है, मैंने तुम्हें सारे पहले बता दिया. कंसर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है. लोकस स्टैंड है. प्राइमा फेसी दिखना चाहिए कि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में. प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऐसा लगना चाहिए कि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, इसमें कोई प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं है. ओके, रिट्स फाइल इसका जो अगर तुम्हारा PIL सक्सेसफुल हो जाता है तो कोर्ट्स क्या इशू करता है? कोर्ट्स इशू करते हैं रिट्स. और रिट्स तुम्हें मालूम है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में है, आर्टिकल 226 में इन द हाई कोर्ट में. ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड? नाउ तो ये प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, अब हमने इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एज अ प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन. क्लियर? नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. नाउ प्लीज ध्यान से सुनो. नाउ मैं ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस में देखा मैंने. अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तुम्हें मालूम है उनके पास कितना काम है और वो कितने पावरफुल अथॉरिटी है. एक लेटर जाता है. ओके, एक लेटर कोई एक मजलूम इंसान ओके कहीं से लिखता है और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना काम वाम छोड़ देते हैं. इनफैक्ट अगर तुम नोटिस करो तो ये वाला लेटर वाला काम अभी वेरी रिसेंटली भी हुआ, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, जब RA कॉलोनी बॉम्बे का वो ट्रीज काटे जा रहे थे, इफ यू रिमेम्बर दैट. तो लॉयड कॉलेज के लॉ स्टूडेंट्स ने, किसी एक लॉ स्टूडेंट ने लेटर लिखा और उस लेटर को PIL में कन्वर्ट कर दिया था. आई होप यू रिमेम्बर दिस. ओके, सो लॉयड कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में, वहां पर एक लॉ कॉलेज है, उसके स्टूडेंट ने लेटर लिखा एंड इट वाज कन्वर्टेड टू PIL. और ये RA कॉलोनी का जो ट्री कटिंग का था इसको स्टे किया था सुप्रीम कोर्ट में. Okay, everyone has understood? Now listen. Now the CJI, okay, this CJI साहब is a very busy man. Okay, he is huge, right? Now इन्होंने अपना वक्त में से निकाला और इन्होंने एक पूरा, बेटा ये केस होता है, ऐसा मजाक तो है नहीं, तुम समझ सकते हो, टन्स एंड टन्स ऑफ एफर्ट. लेकिन CJI ने इन PIL फाइल किया. ओके, और वो PIL फाइल करके ओके he converted this into a case. Okay, now the point here is that you have to be very careful on this part. तुम्हें ऐसा CJI चाहिए जो कि अपने ड्यूटी में से निकले. ओके, ड्यूटी से निकले और तुम्हारे लिए कुछ करे. या फिर तुम्हें ऐसा CJI चाहिए जो अपने ऑफिस में बैठे रहे कि भाई जब केस आएगा ना तब देखेंगे. तुम्हें कौन सा चाहिए? नंबर 1 who steps out of his cozy office and works for you, या फिर नंबर 2 जो बोले कि भैया जब केस आएगा तब देखूंगा, तब तक तुम्हारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं. Everyone would like to have this kind of a judge. इस जज को एक्टिविस्ट जज बोलते हैं, the one who is active. और इस प्रोसेस को जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं. Are you understanding? जब जुडिशरी comes out of its so-called cushy office and starts working, तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे जज. उनमें क्लासिकल थे, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, जस्टिस सिन्नप्पा, all of them. In fact, today's judges also, Gogoi Saab and everyone. Okay, so this is a very powerful, very nice thing. Okay, so हम लोग बड़े खुश हुए, तो हमने बोला वाओ वाओ वेरी नाइस, ऐसे जजेस होने चाहिए, कांग्रेचुलेशंस, यू नो, हम बड़े अच्छे जुडिशरी है हमारे पास. लेकिन ये एक बड़े डेंजरस रूल बन सकता है. कैसे? हमारे कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर्स है. इफ यू नोटिस दिस पार्ट, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. जब भी जुडिशरी एक्टिविज्म कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं या तो एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव के टेरिटरी में एंटर कर रहा है. ये सुनो, तभी हो सकता है ना.
वरना तो वो अपने ऑफिस में बैठे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का ऑटोमेटिक मतलब हुआ कि वो ऑफिस से बाहर निकलना मतलब क्या होता है, घर के बाहर निकल के थोड़ा बात हो रही थी। व्हाट डज दैट मीन कि जुडिशरी अपनी लाइन क्रॉस करके या तो एग्जीक्यूटिव की तरफ जा रहा है, या तो जुडिशरी एक्टिविज्म के करके वो अपनी लाइन की तरफ जा रहा है, या फिर okay, वो लेजिस्लेटिव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल विशाखा गाइडलाइंस क्या था, ये काम किसका था, लॉ बनाना। ओके, ये काम लेजिस्लेटिव का था, लेकिन किसने गाइडलाइंस दी, सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी सारे डिसीजन ओके, पुलिस का काम था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो करना, हुसैन नारा खातून केस में, लेकिन किसने जबरदस्ती करवा दी, जज ने। ओके, तो ये किसके टेरिटरी में चला गया, एग्जीक्यूटिव। एनवायरमेंट की प्रॉब्लम किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की है, लेकिन हु इज डूइंग दिस, द जुडिशरी इज डूइंग दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। ओके, नाउ धीरे धीरे क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल वन डे द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड कि हाईवे के 500 मीटर्स हियर एंड हाईवे के 500 मीटर्स ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, ओके, यू शुड नॉट हैव अल्कोहल बीइंग सोल्ड। अब तुम परेशान होने लगे, बोले यार ये तो सर पूरा ही एग्जीक्यूटिव की टेरिटरी है सर, आप कहां से आ गए यहाँ पे, यू अंडरस्टैंडिंग। तो यही जो तुम स्माइल कर रहे थे ना, वो थोड़ा थोड़ा पहले ऐसा हुआ, ओके, और फिर ऐसी हो गई तुम्हारी इमोजी। ओके, अब तुम बोले नहीं यार सर ये तो इंटरफेरेंस हो रही है, बोला ये तो गड़बड़ है सर, इससे तो बैलेंस चला जाएगा। द सेपरेशन ऑफ पावर्स इन बैलेंस की वजह से अगर वो बैलेंस चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो वी कैन नॉट अलाउ दिस पार्ट टू हैपन। ओके, ओके, सो वी सेड वी कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन। तो हमने बोला अभी रुक जाओ सर, ये क्या कर रहे हो। उसी जुडिशियल एक्टिविज्म को फिर क्रिटिसिज्म होने लग गया एज जुडिशियल ओवररीच। क्या बोलने लगे, उसी को वाज नाउ कॉल्ड एज जुडिशियल ओवररीच कि सर अब कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया। अरे जरूरत से ज्यादा, यस, क्योंकि सर यहां तक मंजूर था, यहां तक मंजूर नहीं। अब तुम हम ही होशियार हो गए कि भैया हम क्वांटिफाई करेंगे कि कितना हमको हेल्प करना है। तो जजेस स्टार्टेड फेसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो मैं एक दिन जज साहब के पास गया, मैंने कहा माय लॉर्ड ये क्या कर रहे हो आप। तो जज साहब बोले क्या प्रॉब्लम है साहब। मैंने कहा माय लॉर्ड एक बात बताओ ना, आप अपने ऑफिस में रहो, ओके, आप क्यों क्रिटिसिज्म कर रहे हो, सह रहे हो सर। ओके, थैंकलेसनेस है सर, आप इतने मेहनत कर रहे हो, यू आर डूइंग जुडिशियल एक्टिविज्म, यू आर गोइंग आउट ऑफ द वे, यू आर डूइंग पीआईएल, यू आर वर्किंग आउट, यू आर डूइंग सुओ मोटो केसेस, यू आर डूइंग एवरीथिंग, एंड नाउ यू आर फेसिंग क्रिटिसिज्म। थैंकलेस जॉब है सर, ये क्यों कर रहे हो। आपको भी तो, एंड यू आर वाइज मैन, यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके सर, पूरा का पूरा बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप मत करो। ओके, आप ये कर क्यों रहे हो, ओके, डोंट डू दिस जुडिशियल एक्टिविज्म। तो बोला नहीं सिद्धार्थ। तो मैंने बोला क्यों नहीं सर। तो बोले सिद्धार्थ मैं कौन हूँ। मैंने कहा सर आप जज हो। कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है मैं जज हूँ, लेकिन मैं करता क्या हूँ। मैंने कहा, सर आप अपनी नौकरी कर रहे हो। कहते नहीं सिद्धार्थ मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, ओके, मैं जस्टिस करता हूँ, यूर अंडरस्टैंडिंग। और इस जस्टिस को करने के लिए ओके मुझे जो कुछ करना जरूरी है ना मैं करूंगा। मैंने कहा जैसे मान लो। बोले सिद्धार्थ अगर प्रॉब्लम आया, ओके, मैं कब जुडिशियल एक्टिविज्म करता हूँ, पहले ये तो समझो। मैं जुडिशियल एक्टिविज्म कब तब करता हूँ जब व्हेन देयर इज एग्जीक्यूटिव नॉन कंप्लायंस। मैंने क्या बोला, व्हेन देयर इज एग्जीक्यूटिव नॉन कंप्लायंस। मतलब क्या सर, मतलब जब एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं करता है तब मैं भागते हुए आता हूँ। मैंने कहा जैसे माय लॉर्ड। बोले सिद्धार्थ क्या तुमको नहीं मालूम था शीला बरसे केस में, ओके, तुम्हें नहीं मालूम था कि लेडीज को जब अरेस्ट करते हैं तो केयर फॉर डिग्निटी हैज टू बी टेकन। ये तुम्हें मालूम था ना, ये तुम्हारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ये पुलिस मैनुअल्स में लिखा हुआ है ना। मैंने कहा हाँ, पर ये लोग करते नहीं। ओके, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो करना होता है। ओके, बट हुसैन आरा खातून केस में तुमने नहीं किया। ओके, तो हमें तुम्हें याद कराना पड़ता है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है दिल्ली में पोल्यूशन हुआ है। ओके, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि डीडीसी खराब हुई पड़ी है, डीजल खराब है, लेकिन हमको करना पड़ा, उसको सीएनजी में कन्वर्ट करना पड़ा। मैंने कहा हाँ बराबर है माय लॉर्ड। और माय लॉर्ड बोला कि हमको एक और जगह करना पड़ रहा है। मैंने कहा कहाँ माय लॉर्ड, व्हेन देयर इज लेजिस्लेटिव वैक्यूम। क्या मैंने बोला, व्हेन देयर इज लेजिस्लेटिव वैक्यूम। तो बोले कैसे। बोले सिद्धार्थ एक फीमेल आई थी हमारे पास सामने, भंवरी देवी, उनके साथ हुआ था सेक्सुअल सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट। ओके, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस था, कोई लॉ प्रेजेंट ही नहीं था। क्या कहते हैं हम उसको कि तू चली जाए यहाँ पे, क्योंकि लॉ ही नहीं है। ओके, तू चले जा, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, बिकॉज देयर वाज अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम, हमको पास करना पड़ा व्हाट आर कॉल्ड एज विशाखा गाइडलाइंस। ओके, ओके, उसी तरह से जो फायर क्रैकर बैन हुआ, हमने बुक खोल के देखी, एयर पोल्यूशन में सारी तरह की पोल्यूशन लिखी हुई थी। ओके, एयर पोल्यूशन एक्ट में सारी तरह की पोल्यूशन लिखा हुआ है, व्हीकल से, इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से। ओके, फायर क्रैकर्स को इन लोगों ने माना ही नहीं हुआ था। भैया फायर क्रैकर से तो पोल्यूशन होता है ना, तो जब पोल्यूशन होता है तो हमको एयर पोल्यूशन को के लिए फायर क्रैकर बैन करना पड़ा।
Are you understanding? No problem, Jadid. Welcome. Now, everyone has understood. तो बोला, मैंने बोला हाँ माय लॉर्ड, ये भी है। तो मैंने कहा और कहीं माय लॉर्ड आप ऐसा करना चाहते हो? बेटा सिद्धार्थ, हमको ये भी देखना पड़ता है इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, या नेचुरल जस्टिस में भी हमको इन्वॉल्व होना पड़ता है। मैंने कहा कैसे माय लॉर्ड, आपको यहाँ पर कैसे, मतलब ये इसका भी कुछ हमें एग्जाम्पल दे दो। बोले सिद्धार्थ, हमको पता चला कथुआ रेप केस के बारे में, ओके, हमको मालूम पड़ा कथुआ रेप केस के बारे में, और हमको मालूम पड़ा कि अगर ये रेप केस का ट्रायल कथुआ में होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होंगे, वहां पर खतरा रहेगा, ओके, कि जस्टिस नहीं डिलीवर होंगे, तो हम अपने आप ये केस ट्रांसफर कर देंगे। एक दिन हमें मालूम पड़ा कि तुम लोग राफेल फाइटर प्लेन्स खरीद के ले आए हो, ओके। जब राफेल फाइटर प्लेन्स खरीद के ले आए हो तो लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि इसमें किकबैक्स है, किकबैक्स है, किकबैक्स है, ओके। ट्रस्ट खत्म हो गया गवर्नमेंट पे, हमको इसको पीआईएल कन्वर्ट करना पड़ा ताकि लोग सैटिस्फाई हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, राइट? सो वी विल हैव टू लुक इनटू ऑल दीस मैटर्स, ओके, एंड एवरी टाइम। अब कल ही हमारे पास व्हेन यू हैव केस लाइक, तो ऐसे उन्नाव रेप केस भी था, इफ यू नोटिस दिस पार्ट, ओके, दिस वाज आल्सो द उन्नाव रेप केस में ये भी मतलब यू विल डू ट्रांसफर ऑफ केसेस। उसी तरह से कल ही हमारे पास एक आदमी आया, उसने हम पर ही डाल दिया कि सर आप ना अपनी भी प्रोसीडिंग्स लाइव करो। हमने बोला कोई बात नहीं, कल तुम्हारा ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट से चले जाएगा, हम खुद अलाउ कर देते लाइव स्ट्रीमिंग, ओके। सो स्वप्निल त्रिपाठी केस में हमने इसको डील कर दिया विद रिगार्ड्स टू जस्टिस। दीज आर द प्लेसेस सिद्धार्थ जब हम शो करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे ना सिद्धार्थ तो हमको जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा माय लॉर्ड आप बड़े अच्छे हो, यू आर ह्यूज, आप बहुत अच्छे हो, ओके, यू आर एब्सोल्युटली ऑनलाइन विद दिस पार्ट। मैं आपकी बात मान गया, लेकिन माय लॉर्ड प्लीज मत भूलो कि एक सेपरेशन ऑफ पावर नाम की भी वस्तु है, ओके, उसके बारे में तो कुछ करो ना। अगर आप ऐसे हर चीज में चले जाओगे, एग्जीक्यूटिव के एरिया में, लेजिस्लेटिव के एरिया में, तो सर गड़बड़ हो जाएगी ना, आपको तो कोई रोक नहीं सकेगा, सब आपसे डरते हैं, लेकिन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे को जज साहब बोले सिद्धार्थ क्या चाहता है? मैंने कहा माय लॉर्ड छोटा सी बात बोलता हूँ, सेल्फ रिस्ट्रेंट, दैट्स इट, ओके। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, माय लॉर्ड आप तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स रखा ही नहीं है, ओके। इट इज ओनली डॉक्ट्राइन्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, मतलब अलाउड है, हम एक दूसरे के टेरिटरी में घूमने जा सकते हैं, लेकिन किस हद तक जा सकते हैं वो हमें कोई मेजरिंग टेप माय लॉर्ड डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं दिए। तो मेजरिंग टेप तो है नहीं कि 2 मीटर जा सकते हैं, 2.5 मीटर नहीं जा सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक ही तरीका है माय लॉर्ड, आप बड़े पावरफुल हो, सेल्फ रिस्ट्रेंट, ओके, यू शुड नो, और आप तो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, बड़े ध्यान से। एक्टिविज्म के चक्कर में सेपरेशन ऑफ पावर ना बैलेंस खत्म हो जाए, सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने के चक्कर में जस्टिस ना चले जाए। The only way that we can control this is by doing self-restraint so that we balance judicial activism with the concept of separation of power. Are you clear with this part or not? तुम बुक लिख सकते हो my friends अब इस पे। Everyone understood or not? Everyone has understood? Yes. ऐसे आंसर लिखते हैं my friends, okay? जब सब कुछ बैलेंस करके आंसर बनाया जाता है, okay? Then you write an answer, right? Then it comes out substantial. ओके फ्रेंड्स, सबको समझ में आया या नहीं? ऑलराइट, आई थिंक पीआईएल को इसके ज्यादा करने की जरूरत नहीं, मोर देन इनफ। मैंने तुम्हें उतने एग्जांपल्स दे दिए, तुम जुडिशरी का एक केस कर सकते हो इसमें, ओके। सो प्लीज एंश्योर दैट ये सारे तुम्हारे पास पीआईएल्स याद हो जाए, ओके, एंड दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर टुडे, ओके। आई विल सी यू एट नाइट, टुनाइट 8 o'clock, okay, more than enough, right? We'll take care of this. Thank you.